Hi guys. So we'll be starting in other 2 minutes. So get ready for the class. Okay, so let's start, right? So I'll quickly share my screen. Right. We'll start. Yeah. I hope you guys can see me. Well, okay. So let's start. So today's topic is about sequence and series progressions basically. So I'm gonna write sequences and series. Okay. So first of all, we are going to go through all the formulas that we have. Then we are going to jump into the questions. Okay. So see, first of all, talk about arithmetic sequence. Arithmetic. Okay. Then I'm going to talk about geometric. And the least asked, but sometimes it is also asked. So it is harmonic. Okay. So arithmetic, geometric, and harmonic. So if I talk about the arithmetic mean or the arithmetic sequence for say, okay? So sequence formula for the nth term, if I have to find the nth term, right? So it is given by very simple, a of n is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. A is the first term and d is the common difference. Perfect. Now I have to give the sum of n terms. So it is going to be given by S of n is equal to n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 multiplied by d. ठीक है जी. अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक की. ज्योमेट्रिक में अगर मुझे if I have to give the nth term, so a of n is always given as a r to the power n minus 1. And इसमें a is the first term, but r is the common ratio. Okay. Now for sum of n terms, S of n, that is equal to a multiplied by 1 minus r to the power n upon 1 minus r. ठीक है जी. Now S of infinity, मतलब sum of infinite terms, it is given as a upon 1 minus r. ठीक है. Now if I talk about harmonic, अब harmonic में if I have to give the number of terms a of n, that is given by 1 over a plus n minus 1 multiplied by d, and S of n is equal to 1 by d of
natural log of 2a plus 2n minus 1 multiplied by d upon 2a minus. बहुत कम आता है हार्मोनिक का, but it is a good to know thing. That's it, right? So yeah. Did UniVoyage? See, Manan, UniVoyage provides you with the IPMAT preparation as of now. Yeah, in the upcoming years, we would start with a CAT preparation as well, but not currently. We do not provide CAT preparation. We only provide end-to-end IPMAT preparation. Yeah. Okay. What's harmonic? Okay, so you know about arithmetic, you know about geometric. What is harmonic? Harmonic series, I would tell you, okay, not about harmonic mean. What is it? Okay, so harmonic series is basically an infinite series. Okay, by it is generated or it is obtained by adding all the positive terms of it. So, for example, if I have to tell you about this, okay, I'll just share it. So, if I talk about harmonic mean, what is an harmonic series? Okay, harmonic series. So, you all know what is arithmetic series. Arithmetic series is basically if I have been given a series 1, 2, 3, 4. So I find the common difference, which is this is say A1, this is A2. So difference is given as A2 minus A1. And if it has a common difference of 1 and it is constant throughout, as in the difference is constant throughout, then I say the series is arithmetic. Now in the case of geometric, it is, for example, if I have 2, 4, 8, right? So this is A1, this is A2, this is A3, for example. Now I have to find the common ratio. So that is A2 divided by A1, right? So it comes out to be 4 by 2. And similarly, A3 by A1 would be all, A3 by A2 would be also 8 by 4. So the common ratio is constant 2. So this is geometric mean. But now, in the case of harmonic series, right, the denominator that we have. So for example, if we have the series like 1 upon 1, that is 1, plus 1 upon 2, plus 1 upon 3, and so on and so forth. So if these denominators are in some AP, GP, then that series is called harmonic series, right? In the unit fractions. Then that series is called the harmonic series. It's the least asked series, but kabhi you might have seen those questions in your NCRT as well, जहाँ पे harmonic series की बात होती है. And Karthik, why did you delete it or why did you revert your message back? यार कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है? चलो guys, ठीक है, थोड़ा टाइम दिया प्रोसेस होने के लिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए. तो वील स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड देन वील पिक अप द पेस, ठीक है? So guys, you can also sign up for free on UniVoyage, and what you can do is basically try or solve 5 questions daily. So that would help you in building the consistency as well. Okay, so you will be able to do those 5 questions and form a consistency, which will all obviously help you. I've seen questions from harmonic series in Indore. No. वही लीस्ट आज टॉपिक है, पर हार्मोनिक सीरीज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कार्तिक. इट वुड जस्ट बी कि भाई कोई एक रिलेशन दे दिया होगा थ्रू जीपी और विद एपी, कुछ ऐसा होगा. ऐसे डायरेक्ट हार्मोनिक सीरीज का क्वेश्चन आई डाउट कि आएगा, ठीक है? इट वुड बी इन रिलेशन विद समथिंग ओनली, राइट? Is IPMAT worth it? Yogesh, you need to ask yourself, is IPMAT worth it or not? To be honest, it totally depends upon you. यार कोई कहता है कि UPSC worth it है, UPSC करें,
और कोई कहता है जेई वर्थ इट है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि यू फाइंड इट वर्थ कि भाई जाना है, एंड इफ यू रियली वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट फील्ड तब इट्स वर्थ इट। इफ यू वांट टू परस्यू आगे कुछ ऐसे कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग और आर्ट कोर्सेज तो it's totally not worth it. But if you really want to go into management field and if you really want to be in the management, what do you say, corporates or something, so it is totally worth it. Okay. But to label it as ki bhai it's totally worth it without knowing the backstory of yourself and your hunger to go into all of this or managerial background, so that's very hard. But yeah, as per my knowledge, it's totally worth it. ROI is definitely very good. Okay, and ROI is return on investment, how much you invest, and then how much you get in return. How can I start my preparation? Currently, I am in 11 PCB. Okay, so you have PCB, and what elective do you have? Do you have maths as your elective or some other subject? For a non-math student, how much time is needed to prepare? Karthik, okay. So see, for verbal and logical, you would not require much of maths. Okay, that's one thing. Uh, yeah, for quants, you would require maths and you would require. Okay, Yogesh, then what elective do you have? You would require a serious practice in this, right? So this answer is applicable to both Karthik and Yogesh. Okay, so a lot of practice would be required from your end. At least 2 hours a day for math if you start early. So Karthik, I'm assuming you are in class 12th. Okay, and Yogesh told me he's in class 11th, right? So a lot of practice is required. Okay, so you can make a list. Okay, of 11, 12 topics by analyzing previous year question papers, or I can give you that list as well, right, where you can see कि भाई सबसे ज्यादा frequency of questions कहाँ से किस topic से है, ठीक है। Then what you can do, वो topic उठाओ, उन topics को अपना पूरा strong कर लिया हमने, then you move on to different topics। एक बार वो topic strong हो गए, confidence आ गया, फिर तो maths easy लगने लगेगी, then you will have the interest in maths as well। जब तक you'll be afraid of doing maths, तब तक बहुत मुश्किल है, ठीक है, राइट। और कोई क्वेश्चंस करें क्या? कोई और डाउट इससे रिलेटेड? So what you can do ना, Yogesh and Karthik, should I prefer buying batch or do self-study? यार PCB, to be honest, I was a PCM student, ठीक है, तो I had maths, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा maths का एज था, but being a PCB student, Yogesh, you would study or you will be taught something very different which will not be related to IPMAT if you are really interested in going to IPMAT, ठीक है। So I would suggest you to take up a course, ठीक है, कोई भी क्रैश कोर्स ले लो या नॉर्मल क्लासरूम कोर्स वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि क्रैश कोर्सेज ना आर वेरी स्विफ्ट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम अभी ना, यू हैव अराउंड 2 years। सो आई वुड प्रेफर कि भाई यू टेक सम रेगुलर क्लासरूम कोर्स जहाँ पे हफ्ते में यू अटेंड 3 to 4 क्लासेस, एक एक 1.5 घंटे की, एंड you'll have all the content which is self-paced, so you can go with that content। live mocks दे दो, रोज के डेली 5 questions कर लो, तो you will be good to go। but PCB से self study if you are really that very determined तो possible है, क्योंकि फिर तो PCB ME हो जाएगा because you will have to study maths। but कोर्स लेके one thing would be definite कि भाई you will have a structure, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में 1-2 महीने चले जाते हैं, ठीक है, जब that is the main pain, structuring is very important।
इन दिस कि भाई कितना किस टॉपिक से पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी रिलेशन फंक्शंस जब मैं अपने टाइम पे करता था, आई फाउंड लाइक आई स्टिल फाइंड रिलेशन फंक्शंस अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। आई स्टिल कैन नॉट डू इट बहुत अच्छे से, तो आई कैन नॉट, ठीक है। तो मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस छोड़ के ही चला जाता था, क्योंकि भाई नहीं होता था इस लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। हाँ, यस, एलआर तो है ही है। एलआर वीए वर्बल, मतलब VA is verbal ability, LR is logical reasoning, QA is quantitative aptitude, ये तीनों पार्ट हैं। एंड देन यू हैव द PI। Is logical reasoning part of IIM Indore? I didn't get you. इंदौर, हाँ। सो LR इंदौर के लिए नहीं है, ठीक है। LR इज नॉट फॉर इंदौर, योगेश, इफ दिस इज योर क्वेश्चन। फॉर IPMAT एंड सी फॉर IPMAT रोहतक, जम्मू एंड ऑल ऑफ दोस, उसके लिए LR इज कंपल्सरी, बट इन इंदौर LR डजंट कम, ठीक है, राइट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। नो, बिकॉज IPMAT इंदौर का पेपर अलग है, रोहतक का पेपर अलग होता है, तो इंदौर के में LR डजंट कम, ठीक है, राइट। या चलो, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो हैंग इन ऑन इन द क्लास, ठीक है। क्वेश्चंस करके देखो, अगर नहीं हुए क्वेश्चंस तो वेट फॉर 2-3 मिनट्स, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ही, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। फाइंड दी 15th टर्म ऑफ AP whose first term is 2 and common difference is 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे ही हमने फॉर्मूला लिखा है वो हियर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। चलो, 2 मिनट। ममता, आर यू श्योर? DI is data interpretation. Okay. Karthik means DI, data interpretation. So data can be given in many forms, Yogesh, right? May be in graphs, picture format, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? And you have to analyze that data, ठीक है? No, Yogesh, it is not correct, Mamta. ठीक है? You have to interpret the data and you have to get on to conclusion. Yes, Yogesh. हाँ, ठीक है? Got it? चलो, so let's do it, yeah, करते हैं। चलो, क्या दे रखा है? फाइंड दी 15th टर्म, सो मुझे A15 निकालना है, राइट। हुज फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब A मेरा 2 है, D मेरा कितना है? 3 है। तो फॉर्मूला क्या मैं जानता हूँ, AN का क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। मुझे क्या निकालना है? A15, N क्या है? 15 हो गया, A हो गया 2 प्लस N माइनस 1 एंड D इज, तो 2 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 14 थ्री जा क्या होता है? 42। 42 प्लस 2 इज 40। परफेक्ट है, समझे जी? है, आगे चलें।
Now, next question. What is the sum of first 15 terms of an AP whose 11th term and 7th terms, 11th and 7th terms are 5.25 and 3.25 respectively. 11th and 7th, 11th and 7th terms are 80. This would be right English. 11th and 7th terms are 5.25 and 3.25 respectively. हमें sum of first 15 terms बताना है. ठीक है, करेंगे. Okay, Mamta. Yeah, just scrolling and found your scene. Glad you found it. You know. So what are you planning to take, Mamta, in class 11th? Science, commerce, the arts. What are you planning? Commerce, nice. Okay. With math or without? For IPM and BBA. Okay. Nice. So अभी से what you can do, Mamta, अगर थोड़ा मन है, वैसे your boards would be near, so this might not be the most right time for you. But what you can do, कि थोड़ा अपना schedule बना सकते हो कि what to do and what topics to prepare well. ठीक है, तो मतलब अगर मान लो स्कूल में वो टॉपिक्स हो रहे हैं आपके, तो पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट, है ना. ओके, सक्षम, ठीक है. सो सक्षम, व्हाट यू कैन डू कि आप वो जो पेपर्स आपके स्कूल में, मतलब सॉरी टॉपिक्स व्हेन दे आर टॉट इन स्कूल, यू कैन पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट. ठीक है, तो दिस वुड हेल्प यू, है ना, एंड गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. बाकी तो यू हैव टाइम, बट टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, तो दैट्स वन थिंग. चलो ये करें, किसी का हुआ क्वेश्चन ये? एनीबडी? किसी ने किया क्वेश्चन ये गाइस? बहुत धीरे चल रहे हैं यार अपन, थोड़ा तो अपने को स्पीड पकड़ना पड़ेगा. इतना धीरे से नहीं होएगा. चलो आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म? एस ऑफ 15 देना है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म. अब 11th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो 11th टर्म आएगा मेरा, दैट कैन बी रिटन एज a plus 10d. ठीक है, 10 टाइम्स डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस द फर्स्ट टर्म वुड बी दी 11th टर्म. ठीक है, वो क्या दे रखा है? 11th टर्म इज 5.25 एंड a plus 6th टर्म मतलब a plus 6d इज व्हाट? 3.25. तो इसमें से d की वैल्यू मेरे को लग रहा है आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, 4d इज इक्वल टू 2, तो d आ गया क्या मेरा? हाफ. d आ गया मेरा हाफ. अब इस d की वैल्यू को, हाफ को मैं पुट करूंगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहली वाले में पुट कर दूंगा. a plus 10 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज इक्वल टू 5.25. ठीक है, तो a plus 5 इज इक्वल टू 5.25. तो a क्या हो गया गाइस? 5.25 माइनस 5, तो a आ गया मेरा 0.25. अब a आ गया मेरा 0.25, d आ गया मेरा हाफ और 0.5, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है. तो आई कैन फाइंड आउट सम ऑफ 15 टर्म्स. मैंने लिखा था सम ऑफ 15 मतलब सम ऑफ n टर्म्स कैसे लिखना है? एस ऑफ n इज इक्वल टू n by 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a plus n minus 1 into d, है ना. तो यहाँ पे डाल दो s of 15, n हो जाएगा 15, तो n by 2, 15 by 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2a.
2 multiplied by 0.25 is 0.5. 2a plus n minus 1 मतलब 14. 15 minus 1 14. n minus 1 into d is what 0.5. ठीक है जी, सॉल्व करेंगे. 15/2 को एज इट इज ही रहने दीजिए. 0.5 प्लस 7. ठीक है, ये क्या हो गया? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ. चलो कोई नहीं, इसको ऐसे 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 7.5. ठीक है, so can take it like this, right? तो क्या काटे, कुछ कटेगा ही नहीं ऐसे. तो इसको ऐसे 2 3 ठीक है. तो 75 3 73 210 एंड ये हो गया 225/4. तो अगर मैं इसको इससे काटू तो 4 5 20 बचा 2. 4 6 56.25 would be the right answer. किसी का है ये आंसर यहाँ पे? वेरी गुड सक्षम, नाइस. किसी और का समझ आया गाइस? कोई डाउट है इसमें हमें? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस गाइस? ओके, आगे चलते हैं. चलो ठीक है, लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन दे रखा है क्या. इफ 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to 10 square is equal to 385. Okay, then the value of, then then what is the value of 2 square plus 4 square plus 6 square so on up to 20 का स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है. ऑप्शन देते हैं जी सबको. चलो इस बार ठीक है. चलो करेक्ट सक्षम, नाइस. अब मुझे बताओ कैसे करना है इसको. थोड़ा बहुत ट्राई करने हैं, ज्यादा नहीं. हमें बस मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि भैया ऐसे करना है तो हम वैसे करेंगे इसको, जो भी जिस तरीके से आपने किया होगा.
बस अच्छा, हसल कह रहा है 4 × 385। 4 कॉमन लो। कहाँ से 4 कॉमन ले हसल? 4 तो कहीं से कॉमन। 4 कहाँ से कॉमन ले? कैसे बनाओ सीरीज को? चलो कर ले। ठीक है असल, मैं समझ गया क्या कह रहे हो आप, है ना? सही है, वो सही है। चलो, और देखो, इसको ना दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। या तो मैं इसको सम में बांट लूँ, ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, उसकी वैल्यू में लगा सकता हूँ 385। या तो उससे आसान वे जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। समझ आया ब्रेक कैसे किया मैंने? प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। वैसी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स आर स्टेइंग कांस्टेंट। तो ऐसे ही लास्ट में कहां तक चले जाऊंगा मैं? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। अब जैसे असल ने कहा भैया 4 कॉमन ले लो, तो वैसे ही 2 का स्क्वायर मतलब 4 कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 380, ठीक है। तो 5 4 0, 2 इधर, 8 4 32, 4 और 3 4 12 +3, ठीक है जी। ये सबको समझ आया कैसे किया हमने? आई लर्न स्क्वायर टिल 20। सर आगे I don't know whether नहीं, वो ऐसे नहीं करना है ना सक्षम, वैसे डायरेक्टली नहीं करना है ना? ठीक है, करेक्ट है। चलें आगे। बहुत आसान था क्वेश्चन ये। लेट्स मूव इट गाइस, ठीक है ना। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, विच इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स 1 to 100 is divisible by। ऑप्शंस आर 1 2 4 8, ठीक है, बी इज 2 and 4, सी इज 2 and डी इज 1। ठीक है, तो द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स 1 to 100 इज डिविजिबल बाय कौन सा ऐसा टर्म? ठीक है, निकालो और देखो फिर वो कौन से टर्म से डिविजिबल हो रहा है। हेलो अक्षय। सही है सर। नो अक्षय, नो सक्षम।
1 मिनट और ले लो, कर लो करेक्ट योगेश। सक्षम इसमें ये नहीं करना है कि पहले 100 नंबर को मल्टीप्लाई कर ऐड करते रहो, ठीक है। 1 से होगा, पर 1 ऑप्शन में है नहीं ना, और 1 जो ऑप्शन में है वो 248 के साथ है। देखो 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है यार, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना। तो 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल है। हाँ सक्षम, है ना, वो नहीं करना है। ये सम वाले फॉर्मूले से हाँ, उसी से होगा। चलो ठीक है, करें। हाँ, अब देखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ एनी सीक्वेंस, मैं ऐसे देता हूं, n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। n+1 डिवाइडेड बाय 2, n यहाँ पे क्या है, 100 है, फर्स्ट 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 101 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे ही इसको काटा ये आया 50, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 101। अब देखो इस ऑप्शन में 50 क्या 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल सर है। 50 क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सर है। 50 क्या 4 से डिविजिबल है, कंप्लीटली की बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, नहीं है सर, ये ऑप्शन यहीं पे खारिज कर दिया। 50 क्या 2 से डिविजिबल है सर। 50 क्या 4 से है, नहीं है, ऑप्शन को खत्म। 50 क्या 2 से है, बिल्कुल है, और नन, फिर ऑप्शन ही खत्म जब मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इज द वे, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके लिखना, 101 को हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि अगर एक नंबर डिवाइड हो गया तो देन आई कैन हैव दी आंसर, करेक्ट है जी। डिफिकल्ट क्वेश्चन हसल बक्का मैं कराऊंगा, क्लासरूम कोर्स में हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करते हैं यार। यूट्यूब पे वी हैव टू कीप अ स्पेसिफिक लिमिट, है ना, सब बच्चे कर पाए, दैट्स द थिंग, है ना। भगा दिया, भगा दिया, कर दिया, कर दिया जी, कर दिया मैंने सब, रिपोर्ट भी कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा बता दो। एक सेकेंड, ठीक है, मोमेंट इज नो, ओके जी। अक्षत क्या जानना चाहते हो इंटरव्यू के बारे में, कुछ थोड़ा डिटेल्स दो, क्योंकि ऐसे तो देखो, इंटरव्यू के बारे में मैं किसी ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करता हूँ, ठीक है। बहुत डिपेंड करता है कि हम किस इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हैं उसका तरीका अलग होगा, अगर हम आईपी मैट के किसी भी या किसी भी कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में डाल जा रहे हैं, है ना। सर क्या 11th और 12th के लेवल, हाँ यार मैथ्स के तो 11th और 12th के लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा क्या आएंगे, है ना। बस द थिंग इज कि देखो, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब मैं बात करता हूँ जेई की और मैं बात करता हूँ आईपी मैट की, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आईपी मैट के क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, ठीक है, दिमाग से निकाल दो। दे वुड जस्ट स्ट्रेस अपॉन योर थिंकिंग। आई डोंट हैव एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है यार। आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ माय ओन ब्रदर, ठीक है, कजन था, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं था, जेई के लिए पढ़ रहा था पिछले 3 साल से, नाउ इज एन आईपी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर डजंट रियली, आई वुड से इफ यू हैव द पर्सनालिटी वुड नॉट मैटर टू यू, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छी बात है होना, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट वुड मैटर। योर मार्क्स वुड, योर कट ऑफ वुड, योर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर वुड,
योर पर्सनालिटी वुड, ऐसा नहीं यार कि एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, या फिर 10th का डिफिकल्ट लेवल यार। हाउ डू यू डिफाइन डिफिकल्टी योगेश? हाउ डू यू डिफाइन डिफिकल्टी? 11th और 12th कभी डिफिकल्टी किसी को इजी लग सकता है, राइट, और किसी को मुश्किल, मतलब इट्स टोटली डिफरेंट। मतलब 10 से तो यार ऑब्वियसली डिफिकल्ट होंगे ही होंगे, राइट। 11th 12th के आते हैं, मस्त बिंदास आते हैं। फ्रॉम 11th हाउ टू अप्रोच, मैंने बताया ना कि मेक अ लिस्ट, ठीक है, कि भाई ये मेरे 12 13 टॉपिक या 15 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईपी मैट। ठीक है, ये हमने टॉपिक की एक लिस्ट बना ली। जब वो क्लास में पढ़ा रहे हो कोई टॉपिक, राइट, बट यू हैव पीसीबी, तो वही दिक्कत है कि क्लास में भी आप कैसे पढ़ोगे मैथ, है ना। तो क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे यू कैन स्टडी, और यू कैन टेक अ क्लासरूम कोर्स एज वेल, है ना। यूट्यूब पे पढ़ो, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, उनकी कुछ बुक्स ले लो। एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है फॉर क्वांटिटेटिव, वो ले सकते हो। अरुण शर्मा मत लेना, अरुण शर्मा वुड नॉट बेनिफिट यू, बहुत मुश्किल होगी, ठीक है, एंड यू वुड बी डीमोरलाइज्ड, है ना, अरुण शर्मा से डीमोरलाइज हो जाओगे। डू नॉट टेक दैट बुक स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि बाद में नहीं करना, स्टार्टिंग में नहीं लेना है। एंड अच्छे से यूट्यूब से पढ़ो सक्षम। फिर उसके बाद मॉक पेपर देना शुरू करो। जब वो टॉपिक अच्छे से हो जाए, सीधा उसका पेपर लिख दिया। पेपर एज इन बहुत सारी बुक्स आती हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स मिल जाएंगे तुम्हें, जहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है सर। यार आई डिड नॉट लीव इट, डिड नॉट लीव इट हसल। सर आई हैव आर एस अग्रवाल, सक्षम आर एस अग्रवाल, कैसे बताओ यार। आई आई ओके, आई पेज द कॉपी, एक सेकंड, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं किस आर एस अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। आर एस अग्रवाल मैथ्स की अलग आती है, आर एस अग्रवाल क्वांट्स की अलग आती है। इफ यू हैव दिस बुक सक्षम, देन यू आर गुड। एक सेकेंड, मैं दिखाता हूँ, आई शो यू। डू यू हैव दिस बुक? ये वाला है, ये जो मैंने लगाया है, देखो, ये वाला है। देखो ये वाला बुक है क्या सक्षम? ये वाला है, ओके, तो ये ठीक है। अगर ये वाली बुक यू हैव फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली, तो दिस इज अ गुड बुक, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इससे करना शुरू करो, स्टार्ट तो इससे करो, फिर यू कैन इंक्रीज योर लेवल, ठीक है। तो आओ चलो ये क्वेश्चन करते हैं। लो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स in AP is 21 and product of their extremes is 45. ठीक है, find the numbers. नोटा मतलब ननोदय, ठीक है। सक्षम अभी तो हो गई ना, यू आर इन 10th यार। अभी तुमने 11th कोई टॉपिक्स ही नहीं पढ़े, हाउ वुड यू सॉल्व इट? यू नीड अ बैक पिक्चर टू इट, यू नीड सम टॉपिक, राइट। आर एस अग्रवाल का लेवल इज नॉट हार्ड सक्षम, वो निकालना पड़ेगा दिमाग से। थोड़े बहुत क्वेश्चन हाँ ऑब्वियसली हो सकते हैं, बट आर एस अग्रवाल इज वे टू इजी, ठीक है। वो तो करनी करनी है, पर ये नहीं कि उसमें भी
सारे क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल्स कर लो और फिर थोड़े बहुत अनसॉल्व कर लो। टाइम को बहुत जुडिशियसली यूज करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। सो सक्षम व्हाट यू कैन डू ना, डिस्क्रिप्शन में वी हैव दिस नंबर रोलिंग, तो वहां पे यू कैन कॉल, यू कैन शेड्यूल अ कॉल, यू कैन कॉल अस एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू वहां पे। ठीक है, एक्सप्लोर करो। ठीक है, एंड योगेश यू टू कैन एक्सप्लोर, है ना। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं है तो नहीं होगा, सब होएगा। इट्स जस्ट दैट यू आर कितना सीरियस, टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। ठीक है, ओके। नहीं अक्षर, नहीं योगेश, ठीक आ रहा है सबका यार। सर वैट, या मैंने देखा नहीं है इधर डब्ल्यू हो रहा है या नहीं, बट यू कैन स्टिल लुक फॉर इट, क्योंकि डब्ल्यू पे मैं ज़रा ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि 15 मिनट या आधे घंटे का पेपर है ना, बेसिकली फॉर दैट। पर वैट से तुम्हें अभी क्या करना है अक्षर? मतलब फॉर नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? आर यू प्रिपेयरिंग टू गिव कैट अभी? नहीं, नहीं योगेश, सर एट प्रेजेंट मैं अपना टाइम टेबल करेक्ट। अब तो ठीक ही होगा यार योगेश, जब सारे गलत हो गए, है ना, तो अब तो ठीक ही आ जाएगा। तो हाँ वही है, करेक्ट सेक्शन एट प्रेजेंट। अभी मत करो, ठीक है सक्षम, अभी कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड्स, 10th का बोर्ड। ठीक है, अभी अगर कंसंट्रेट यहाँ पे करोगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, बोर्ड जिस दिन खत्म हुए ना, या अभी से हमारे डिस्क्रिप्शन में यू कैन कॉल अस, या फिर जिस दिन बोर्ड खत्म हुए उसके अगले दिन एक दिन का पूरा पार्टी करो दोस्तों के साथ, अगले दिन कॉल कर दो हमें। ठीक है, विल टेक केयर ऑफ यू। और उनको कहो कि मेरे से ही अनमोल से बात करा दो, आई वांट टू टॉक टू अनमोल भैया। ठीक है, आई विल टॉक टू यू। ज्यादा है आईपीएम इंदौर की फीस, हसल ज्यादा है ना, 18-20 लाख नहीं है, 27-28-30 तक भी पहुंच जाएगी। प्लस तुम्हारा भाई वहां पे रहने का खर्चा है, इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंदौर। सिर्फ फीस नहीं देखते हैं वहां पे, तुम्हें मान लो 5 साल यू हैव टू स्टे। ठीक है, अब बाहर छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बाहर इफ यू गो आउट टू हैव ट्रीट विद योर फ्रेंड, तो वहीं पे 100 रुपए लग जाएंगे। इफ यू कीप ऑन एडिंग
हाँ, ये सही है। फॉर यूजी इट इज, फॉर बी इट इज 18 to 20 lakhs। फिर वो पूरा जो 5 साल का कोर्स है, इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 30 to 32 lakhs ओनली द कोर्स फी एंड द हॉस्टल फी, राइट। अपार्ट फ्रॉम, अब मान लो इफ यू आर सम फ्रॉम सम अदर प्लेस, इंदौर से वापस घर जा रहे हो अपने फेस्टिवल्स पे, दैट इज एन एडेड फीस, आराम से इतना पड़ती है, राइट। चले, सो इट्स अ रियली एक्सपेंसिव कोर्स। चलो, लेट्स डू इट। ठीक है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 21। तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। तो मान लो मैं टर्म्स ले रहा हूँ कि क्या क्या मैं टर्म्स ले लूँ, ए माइनस डी, हमेशा ऐसे ही करता हूँ, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, तो ये मेरे टर्म्स हैं। ठीक है, इनका जो सम है वो क्या है, 21 है भैया। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी, 21। अरे ए माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 21। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 7। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब लेफ्ट साइड एक्सट्रीम एंड राइट साइड एक्सट्रीम इज 45। तो a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी इज इक्वल टू 45। ठीक है, a माइनस मतलब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू पुट करो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है, डी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई गाइस, 4। डी हो गया प्लस माइनस 2। अब देखो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को किस आइडेंटिटी में डालनी पड़ेगी, इधर। तो मैं चेक कर लेता हूं। अब देखो, 7 + 2 अगर किया, सॉरी 7 - 2, ए माइनस डी में डाला, तो दिस वुड बी 5 फर्स्ट टर्म। ए फिर क्या होगा, ए 7, एंड ए प्लस डी क्या हो सकता है, 7 + 2 विच इज 9। अगर -2 मैंने डी ले लिया, तो 7 माइनस -2 9 आ जाएगा। 7 एंड 7 माइनस +2 5 आ जाएगा। तो दोनों से मेरी एपी तो बन रही है विद कॉमन डिफरेंसेस भाई। ठीक है, इन बोथ केसेस द नंबर्स आर गोना बी सेम। तो क्या क्या हो सकता है, 579 एंड 975। ठीक है, तो बोथ ए एंड, ठीक है जी। किस किस ने ये किया था, ठीक है, जिसने भी ये किया सही है। चलो, we'll take the last question for the day, then we'll wrap it off। ठीक है guys, so the question is कि how many numbers between 11 and 90 are divisible by 7। ठीक है, इधर हाथ से गिन सकते हो, बट चलो ठीक है, करो जल्दी जल्दी करो, 30 सेकंड के अंदर।
नहीं, 7 13 से 91 होता है यार। 7 13 इज 91। अरे N13 कैसे 11 to 90, 7 13 ही 91 होता है। तो 7 1 तो 7 हुआ, 7 2 से शुरू होगा, 14 से। 14 से लेके 91 से पहले के टर्म्स, मतलब 14 से लेके 84 तक के टर्म्स आएंगे सिर्फ इसमें, क्योंकि पहला रेंज से बाहर हो गया, दूसरा भी रेंज से बाहर हो गया। योगेश समझे? अब देखो, आई राइट इट, करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखो 7 की टेबल होगी, 7 90, 7 13 तक लिखता हो, चलो 7 14 21 28 35 42 49, ठीक है, 56 63 70 77 84 एंड 91, यहीं तक जरूरत है। अब 11 एंड 90 आ रहा है, तो देखो ये तो वैसे ही खत्म हो गया एंड ये भी खत्म हो गया। एक 11 से छोटा हो गया, एक 90 से बड़ा टर्म हो गया, खत्म हो गए। तो या तो इन्हीं टर्म्स को गिन दो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे तो 11 टर्म्स हमने निकाल लिए, ठीक है। बट अगर मान लो कुछ हमें बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि भैया जो लास्ट टर्म आ रहा है ए ऑफ एन, दैट इज 84, ठीक है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए हमें पता है क्या होगा 14, एंड कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या होगा 7, क्योंकि 7 की टेबल से निकालनी है, ठीक है। तो ए ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। निकालेंगे ए ऑफ एन 84, ए क्या है 14 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी इज व्हाट? डी इज 7, डी इज 7, राइट। तो निकाले 84 प्लस 14 प्लस 84 इज इक्वल टू 14 प्लस 7 एन माइनस 7, ठीक है। तो 84 minus 7, that is 77, is equal to 7n, तो n is equal to 77 by 7, which is 11, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 11। is this clear? is this clear योगेश? 14 आंसर नो, वही की है, आर एन नो, 12 भी नहीं। हाँ, ये सिली मिस्टेक्स ही हैं, है ना। तो these all are silly mistakes, हमें नहीं करनी है, we have to work upon this, ठीक है। कोई और डाउट है? आई एम हियर फॉर 2 more minutes, तो पूछ लो। आर्यन समझा कैसे किया? है आर्यन, डिड यू गेट दिस? समझे? ओके, हाँ हाँ, वो करना। कैलकुलेशन, नो प्रॉब्लम योगेश, ठीक है। सी यू इनसाइड द क्लासरूम ऑन नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। चलो चलो गाइस, यू हैव अ गुड डे। अब कोई डाउट्स आ नहीं रहे हमारे पास ऐसे, सो वी विल रैप अप द क्लास, ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड।